good afternoon, everyone, and welcome to today's webinar. I am Dr. Jyoti Vijaj, a counseling psychologist, special educator, and a mental health advocate. With over 14 years of experience in the field of mental wellness, inclusive education, and disability advocacy, I have had the privilege of working with children, with parents, and educators, also with professionals, guiding them towards more inclusive practices and holistic well being. I'm also a certified mental health first aider, a UNESCO led trainer for adolescent well being, and a trainer for CBSE, SCERT, and Rehabilitation Council of India. Currently, I head MEET, which is an organization committed to building a more inclusive and accessible world. चलो थोड़ा सा आपको मीट के बारे में बता देते हैं. मीट MEET, it stands for Mind, Inclusion, Education and Technology. Our mission at MEET is to blend the core areas of mental wellness and special education to create programs and tools to support children with diverse abilities, to empower the caregivers and promote mental well-being of everyone. We work closely with schools, with corporates and communities to spread awareness and implement inclusive practices, whether it is through technology-driven interventions, through skill-building programs, or inclusive hiring initiatives. At MEET, we believe that inclusion is not a privilege, it's a right. Whether it's creating accessible educational resources, advocating for mental health, or supporting individuals with special needs, our goal is to build a world where everyone has the opportunity to thrive. हम लोग मीट में स्पेशल एजुकेशन और काउंसलिंग सेशंस लेते हैं, ऑनलाइन मोड पे भी और ऑफलाइन मोड पे भी. एंड सबसे बड़ी न्यूज ये है कि अब हमने होम विजिट सेशंस भी शुरू कर दिए हैं. तो अगर आप एक पेरेंट हैं जिनके लिए ट्रैवल करना डिफरेंट थेरेपीज के लिए मुश्किल हो रहा है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे होम विजिट सेशंस के बारे में और जानकारी लेने के लिए. ये सारी इंफॉर्मेशन, हमें कांटेक्ट कैसे करना है, ये हम वेबिनार के एंड में आपको बताएंगे. आज मेरे साथ है मिस नविका बजाज, जो कि मीट में ही एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हैं. Hi, I'm a counseling psychologist with experience as a child psychologist and a focus on mindfulness and emotional intelligence. I specialize in helping individuals build emotional resilience. I have been guiding parents and students in developing effective strategies to manage academic stress, enhance focus, and build self confidence for improved learning outcomes. We are so excited to have you all here today. And thank you all for taking out time and joining us in today's webinar. हम ये अश्योर करते हैं कि टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वेबिनार आप लोग बहुत बेनिफिट करेंगे उन स्ट्रैटेजीज से जो हम आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं. और ये सब आता है हमारी नॉलेज से, हमारी रिसर्च से और हमारे एक्सपीरियंस से. हम पूरे वेबिनार को बहुत इंटरैक्टिव रखेंगे ताकि कोई बोरियत ना हो और हम लोग भी जान सके कि हमारी ऑडियंस हमसे क्या एक्सपेक्ट करती है. तो इसीलिए आप सबसे ये रिक्वेस्ट होगी कि जब जब हम आपकी इंटरैक्शन चाहें, चाहे वो चैट बॉक्स के थ्रू हो, चाहे पोल्स के थ्रू हो, चाहे क्विजेस के थ्रू हो, आप जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा. तो चलिए शुरू करते हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम्स के बारे में. Yes, that's why we all are here today. I know exams can feel very overwhelming, but today we are going to break down those study myths, give you real life hacks, and share brain friendly techniques to help you ace your exams without the last minute panic. Okay. Let's be honest, एग्जाम्स एक नाइटमेयर है ना. पर अगर हम आपको ये कहें कि एग्जाम के लिए पढ़ना इजी हो सकता है, फन हो सकता है और स्ट्रेस फ्री भी हो सकता है. Of course, today we are debunking study myths, giving you some smart strategies, and introducing you with science backed techniques to help you study effectively and excel in exams without the last minute cramming. Before we begin, let's play a game and answer some basic questions. So I'll explain the game here. The game's name is This or That Study Edition. इस गेम के दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. First, to help you evaluate and rethink your study habits
And second, to introduce you to more effective techniques through fun and interactive game. So करना कुछ नहीं है. It's very simple. We'll flash a question on with two options and let you vote between A and B. We'll keep that question for 5 to 10 seconds, and you have 5 to 10 seconds for the response. Later on, we will reveal which option is better and why. The questions are targeted towards the students. If we have students here, please answer honestly, or the educators or the parents can answer on the behalf of the students. Hold your phones and type in the answers in the chat box. ओके तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और जैसे हमने कहा था कि हम चाहते हैं ये वेबिनार पूरा इंटरैक्टिव हो, आप हमारे साथ पार्टिसिपेट कीजिए। हम फर्स्ट क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे फ्लैश कर रहे हैं, उसके दो ऑप्शंस हैं ए और बी। आपको जो ऑप्शन मोस्ट सूटेबल लगता है आप प्लीज वो चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आप सबसे बेहतर कब पढ़ते हैं? ए अर्ली मॉर्निंग, बी लेट नाइट। मुझे पता है इसमें बहुत सारे सवाल आने वाले हैं, बट हम सिर्फ आपकी प्रेफरेंस जानना चाहते हैं कि आपको बेस्ट स्टडी टाइम कब लगता है, अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट? ओके, ए बी, ओके, अर्ली मॉर्निंग, यस, लेट नाइट, ओके। बहुत मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज हैं। ओह गुड, गुड, ओके, ओके, ओह वंडरफुल। थैंक यू एवरीबडी फॉर पार्टिसिपेटिंग और हमें ये बताने के लिए कि आपका स्टडी टाइम बेस्ट क्या है। ओके, जैसे मैम ने कहा, कोई भी आंसर राइट या रॉन्ग नहीं है, हम सिर्फ बात करेंगे कि बेटर ऑप्शन कौन सा है। इसमें बिटवीन ए एंड बी, ए अर्ली मॉर्निंग इज द बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि सुबह जब आप उठते हैं एक अच्छी नाइट की स्लीप के बाद, तो आपका ब्रेन ज्यादा अलर्ट होता है, ज्यादा रिफ्रेश होता है। और जो नेचुरल लाइट होती है ये आपके फोकस और कंसंट्रेशन को और बेटर करती है। ऐसा नहीं है कि नाइट आउट सक्सीड नहीं करते हैं, वो भी सक्सीड करते हैं अगर वो इनफ स्लीप लें और अगर वो कंसिस्टेंसी को मेंटेन करें। Okay, another question. How do you usually take notes? Option A, laptop पे type करके, या option B, handwritten notes. So come on people. ओके, A, B, B, and written. Okay, good. We urge everyone to participate because webinar के आगे चलते चलते आपको भी समझ आएगा कि आपकी options कितनी preferred options हैं। Okay, good. Thank you everyone for participating. Okay, so the better option here is option B, handwritten notes. Handwriting engages more brain regions, which is responsible for learning and memory. Typing can lead to passive note taking, where students copy information without truly processing it. Digital notes, however, can be useful for organization and quick searches. Time to move to the next question. Okay, अगला सवाल है, आप टफ सब्जेक्ट्स को कैसे अप्रोच करते हैं? ऑप्शन ए, आप हार्डेस्ट टॉपिक्स को पहले लेते हैं, या ऑप्शन बी, आप इजी टॉपिक्स पहले लेते हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। प्लीज टाइप इन योर आंसर इन द चैट बॉक्स। आपके लिए बेटर अप्रोच कौन सी है, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? ओके, ओके, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, अगेन we have a mixed response here. Okay, great. All those who are participating, thank you for letting us know आपके preferred option क्या है। Here between A and B, option A is a better response. That is starting with the hard topics first. क्यों? क्योंकि आपका ब्रेन किसी भी स्टडी सेशन की शुरुआत में सबसे ज्यादा एक्टिव होता है, और अगर आप हार्डर सब्जेक्ट्स को पहले टैकल करते हैं, इससे आपका डिसीजन फटीग प्रिवेंट हो जाता है। ऑल्सो जब आपने हार्ड टॉपिक्स पहले कवर कर लिए तो इजी टॉपिक्स तो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। Yes. Okay, another question. What's your go-to study environment? Do you study with absolute silence or with background music? Okay, please type in your responses. Okay, silence, okay, with background music. I used to choose absolute silence for studying. I used to study with background music when I was doing maths. It didn't work. Okay, yeah. Okay, so the better option here is option A, silence or minimal noise. Why? Because the brain processes language-based sounds, यानी कि जो lyrics होते हैं, the same way it processes study material, and it creates interference.
And instrumental music can be okay, but absolute silence is good for deep focus. Okay, so now we move to another question. आप एग्जाम की तैयारी कैसे करते हैं? ऑप्शन ए, पास पेपर्स की प्रैक्टिस करके और मॉक टेस्ट लेके, या ऑप्शन बी, नोट्स पढ़ के और समरीज बना के। दोनों ही ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं और दोनों में डिसाइड करना डिफिकल्ट है, बट हम देखते हैं साइंस क्या कहती है दोनों ऑप्शंस के बारे में। Again, we have mixed responses. Okay, option A. Okay, both. Both. Okay. वेल हियर बिटवीन ए एंड बी हालांकि चूज करना मुश्किल है, बट साइंस एंड रिसर्च कहती है कि ऑप्शन ए यानी कि पास्ट पेपर्स से पढ़ना और मॉक टेस्ट लेना एक बेटर ऑप्शन है। क्यों? बिकॉज जब भी हम एग्जाम कंडीशंस को सिमुलेट करते हैं, वो हमारा टाइम मैनेजमेंट बेटर करता है और ब्रेन की रिट्रीवल एबिलिटी को बेटर करता है। ऑल्सो जब एक्टिव रिकॉल करते हैं, यानी कि जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके उसके आंसर सोच रहे होते हैं, वो सिर्फ रीड करने से एक बेटर स्ट्रैटेजी है। Okay, coming to the question. What do you do if you don't understand a topic? Option A, try to figure it out yourself first, or option B, teachers की या friends की help लेते हो. Okay. Please type in your responses. Good, and we are happy to see that our audience is participative. Yeah. Okay, yeah. Okay, the better option here is option B, which is ask for help. Why? Because while independent thinking is valuable, I know, but spending too much time stuck on a concept leads to wasted time and frustration. Seeking guidance accelerates learning and provides clarity faster. So, thank you so much, audience. This was it, and it brings us to the end of our introspection. We will be discussing each element in detail as we go ahead in our webinar. Meanwhile, let's understand that there is no right or wrong option here, because some habits can feel, effective, but may not be the most efficient. Making small study habit changes can significantly boost learning and retention. ओके, सो अब हम ब्रीफली आपको बता देते हैं कि आज हम इस वेबिनार में क्या कवर करने वाले हैं। हम बात करेंगे स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज की, ऐसे टिप्स की जिससे आप अपनी मेमोरी को बूस्ट या एनहांस कर सकते हैं। हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट हैक्स की। देन अगर हमें कॉमन स्टडी स्ट्रगल्स क्या है और उन स्टडी स्ट्रगल्स को कैसे ओवरकम कर सकते हैं। एग्जाम स्ट्रेस जो कि बहुत सुनने में मिलता है, उसको कैसे बीट कर सकते हैं। और अगर बाय चांस एग्जाम्स अच्छे नहीं जाते हैं या जैसा हमने प्लान किया है चीजें वैसे नहीं होती हैं, तो उन सेटबैक से कैसे उभरा जाए। ओके, नाउ बिफोर वी मूव अहेड, हम आपके आगे एक पोल प्रेजेंट करेंगे। आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन आएगा और उस क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होंगे। आपको सिर्फ जो ऑप्शन आपको सबसे सूटेबल लगता है उस पे क्लिक करना है। इट इज वेरी सिंपल, वेरी इजी, एंड वी अर्ज एवरीवन टू पार्टिसिपेट हियर। Okay, so here comes our first poll. How do you feel about studying? I love it. Option B, I do it because I have to. Option C, I struggle with it. I do. Option D, what studying? ओके, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपना पोल जरूर डालो। अभी हमने दिल्ली की वोटिंग भी देखी है, तो यहाँ पे एक छोटी सी वोट अपील आपके लिए है। प्लीज डू वोट, डू गिव इन योर आंसर। आपको कौन सी ऑप्शन सबसे बेटर लगती है? एंड यू विल बी सरप्राइज टू हियर द रिजल्ट्स। अभी हम आपके साथ रिजल्ट्स भी शेयर करेंगे जो आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। एंड गाइस, बी ऑनेस्ट, ओके? हमें पता लग जाएगा। बी ऑनेस्ट अबाउट इट। Okay, we'll wait for 5 more seconds. We request everyone to please cast their vote. How do you feel about studying? Okay, so I'm ending the poll here and we share the results with you. Okay, 59% people say they love studying. Okay, that's an interesting result to know.
And 32% people say, now I know we have a mixed audience, हमारे पास कुछ students That's what हैं, I'm going to say. कुछ But students कम होंगे यहाँ पे. कुछ बच्चे हैं, कुछ एजुकेटर्स हैं. 32% कहते हैं I do it because I have to. 5% I struggle with it. Thank you for the honest answer. And 5% say पढ़ाई क्या होती है. Okay, so we come back to our webinar. Okay, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने घंटों बिता दिए हैं अपनी किताब को स्टेयर करते हुए, ओनली टू रियलाइज कि आपको कुछ भी याद नहीं है? Well, that's because staring at books is not studying. I know you stare at books, but it's not studying. Effective studying is about learning, not just memorizing it. Did you know research shows that students who use active learning techniques retain 2 times more information than those who just read passively? इसीलिए हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें स्टडी स्किल्स क्यों चाहिए. ओके, हमें स्टडी स्किल्स चाहिए बेटर ग्रेड्स के लिए, अपना टाइम सेव करने के लिए ताकि हम स्टडी स्मार्ट कर सकें हार्ड करने की बजाय, लास्ट मिनट पैनिक को अवॉइड करने के लिए, अपनी मेमोरी को स्ट्रेंथन और बूस्ट करने के लिए ताकि जो भी हम पढ़े वो हम बेटर रिटेन कर सकें और समय आने पे उसे रिट्रीव कर सकें, ऑल्सो लाइफ स्किल्स के लिए. अब एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं. 2 बच्चे हैं जो साइंस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. उसमें से एक बच्चा अपनी बुक में हर एक आंसर को अंडरलाइन करता है, हाईलाइट करता है. जो दूसरा बच्चा है वो हर कॉन्सेप्ट का एक माइंड मैप क्रिएट करता है और पास्ट पेपर से प्रैक्टिस भी करता है. आपको क्या लगता है कौन सा बच्चा बेटर? शुभम बाहर से आ गया, वैभव, बड़े सारे इकट्ठे हो गए. रिक्वेस्ट टू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. है तो सही, ये थोड़ी बैलेंस है. Okay. We request you to please mute yourself. Okay. Yes. यहाँ पर वो बच्चा जो एक माइंड मैप क्रिएट कर रहा है, पिछले प्रैक्टिस पेपर्स को स्टडी कर रहा है, ऑब्वियसली उसकी रिटेंशन और रिकॉल बेटर होगी. सो इससे क्या पता चलता है कि जो एक्टिव लर्निंग मेथड्स होते हैं जैसे कि विजुअलाइजेशन या टेस्ट की प्रैक्टिस करना, वो इंफॉर्मेशन को बेटर स्टिक करने में हेल्प करते हैं सिर्फ पैसिव रीडिंग के कंपैरिजन में. Okay, time for another poll. What's your biggest study challenge? Option A, procrastination, मतलब कि delay करते रहना चीजों को. Option B, distractions, with notifications and Netflix and chill. Option C, forgetting what I studied. Option D, time management. अगेन आप सबसे वोट अपील है. हम बात करेंगे स्टडी चैलेंजेस की कि जनरली हमारे बच्चों को क्या स्टडी चैलेंजेस आते हैं. उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपके लिए सबसे बड़ा स्टडी चैलेंज क्या है, और अभी हम सारे स्टडी चैलेंजेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे. ऑप्शन ए प्रोक्रेस्टिनेशन, यानी कि आज का काम कल पर डालना. देन डिस्ट्रैक्शंस, आपका मोबाइल फोन, सोशल मीडिया. देन फॉरगेटिंग व्हाट आई स्टडीड, मेमोरी इश्यूज, या फिर टाइम को मैनेज करना. And we are getting very very interesting results. Okay, everyone please vote. हम और 10 सेकेंड वेट करेंगे और आप सबसे अपील है कि प्लीज आप अपना पोल जरूर दीजिए, आप अपना वोट इस पोल पर जरूर दीजिए. Okay, we have 5 more seconds. All those who have not voted should vote. Okay, we are ending the poll here and let's see what the results are. Okay, so results are on your screen. 18% कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन, देन 23% कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस, 23% अगेन कहते हैं मेमोरी इश्यूज, एंड 36% कहते हैं टाइम मैनेजमेंट. थैंक यू एवरीवन फॉर शेयरिंग योर रिस्पॉन्सेज हियर. ओके, सो नाउ वी मूव टू so now let's discuss in detail ये common study struggles क्या हैं जो बच्चे फेस करते हैं जब वो अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं. So some of the biggest study challenges students have reported are first procrastinations, which is delaying studying until the last minute. That can lead to unnecessary stress and poor performance. अगर चीजों को डिले करते रहोगे और आखिरी दिन तक वेट करोगे, you won't be able to perform good, which will obviously lead to poor retention and increased stress just before the exam.
The tendency to say I'll start later often results in cramming, which is ineffective. ओके, देन वी हैव टाइम मैनेजमेंट इश्यूज, जैसे अभी हमने अपने पोल रिजल्ट में भी देखा। बहुत बच्चों को लगता है कि स्कूल, असाइनमेंट्स, पर्सनल लाइफ, कोचिंग, स्पोर्ट्स, हॉबी, डांस, म्यूजिक, इन सब के साथ बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि पढ़ाई को पूरा टाइम एलोकेट ही नहीं हो पाता। पुअर प्लानिंग से रश्ड लर्निंग होती है कि इतना सा समय है, उसमें इतना सारा पढ़ना है, तो बहुत रश अप करके पढ़ना पड़ेगा, और उससे जो प्रेपरेशन है वो इनकम्प्लीट रह जाती है। Yes. And then comes the distraction. Social media, phones, Netflix, social media में Instagram, reels swipe करते रहना. It is, not a good thing. I also do that. And external noise can make it difficult to focus. With constant notifications and entertainment options, students often struggle to maintain concentration. जैसे कि अगर एक स्टूडेंट पढ़ने बैठा है बट उसके फोन पे बार बार नोटिफिकेशंस आ रही हैं, बार बार आपके फोन पे वाइब्रेट हो रहा है फोन, एंड you will be distracted and you will have that urge to check the notifications that very moment. So ये करने से you will lose a lot of valuable time and this will make difficult to stay on track. देन वी हैव द रॉन्ग स्टडी मेथड, जिसकी वजह से मेमोरी या किसी भी कॉन्सेप्ट को रिटेन करना डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे हमने अभी बात किया था कि अगर हम सिर्फ रीड कर रहे हैं और टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, दैट इज नॉट इनफ फॉर अटेंशन। सो व्हाट इज रिक्वायर्ड इज प्रॉपर टेक्निक्स, क्योंकि अगर प्रॉपर टेक्निक्स पढ़ाई की नहीं होंगी तो बच्चे इंफॉर्मेशन को जल्दी भूल जाएंगे, और जब वो एग्जाम में बैठेंगे उस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना, रिकॉल करना और डिफिकल्ट हो जाएगा। Then we come to the most common challenge, जो कि I guess इस मीटिंग में जो भी हैं उन्होंने भी एक्सपीरियंस किया होगा, and we also have experienced this. Exam stress. Anxiety before and during exams can affect the performance, which will you have the fear of failure, you have high expectations, and then the pressure can lead to mental blocks. Process करना ही बंद हो जाती है information, making it harder to retrieve the learned information. So इसको avoid करने के लिए you should work on it. Their stress prevents them from remembering what they studies and leading to poor performance, which अगर prepare करा भी होगा तो भी भूल जाओगे because stress आपको overpower कर चुका होगा। इसलिए ये चैलेंजेस को रिकॉग्नाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर चैलेंजेस पता होंगे तो हम एक्टिव स्टेप्स ले सकते हैं सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने में, जिससे कि स्टडी हैबिट्स भी इंप्रूव हो जाएंगी और एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो जाएगा। Okay, so now we'll be discussing how you can do effective learning. First, we will learn about how your brain learns and कैसे वो information को store करता है, retain करता है. Second, we will learn about active learning versus passive learning. And third, which we all do, most of us do actually, which is why rectification or rote learning fails without context. ओके, तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानकर कि हमारा ब्रेन कैसे लर्न करता है और कैसे इंफॉर्मेशन को रिटेन करता है। किसी भी इंफॉर्मेशन को रिटेन करने के लिए या याद रखने के लिए बहुत जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना, उन कॉन्सेप्ट्स को रेगुलरली रिव्यू करना, और जो नई नॉलेज आप लर्न कर रहे हैं उसको पुरानी नॉलेज के साथ कनेक्ट करके चलना। हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, 3 स्टेप्स होते हैं। पहला होता है अंडरस्टैंड करना या मेमोराइज करना, दूसरा होता है रेपिटेशन या स्पेस्ड रेपिटेशन, तीसरा होता है नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना। अंडरस्टैंडिंग और मेमोराइजिंग में क्या फर्क होता है? जब भी आप किसी कंसेप्ट को अंडरस्टैंड करते हैं, आपका ब्रेन न्यूरल कनेक्शंस बनाता है जिससे कि वो कॉन्सेप्ट आपके ब्रेन को याद रह सके और आप उसको अप्लाई कर सके। फिर आता है रेपिटेशन। जब भी आप किसी इंफॉर्मेशन को एट रेगुलर इंटरवल्स रिव्यू करते हैं, उससे आपकी मेमोरी स्ट्रेंथन हो जाती है, क्योंकि जो ये नए कनेक्शन, जो ये नए न्यूरल पाथवेज बने थे, वो और स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, जिससे कि फॉरगेट करना डिफिकल्ट हो जाता है। तीसरा होता है नई इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना। जब भी आप कोई नई नॉलेज गेन करते हैं, उसको आप लिंक करके अगर चलते हैं जो आपने पहले कॉन्सेप्ट्स पढ़े हुए हैं या पिछली नॉलेज जो आपने गेन करी हुई है,
इससे आपका रिकॉल बेटर हो जाता है, क्योंकि आपके ब्रेन को जो राइट क्यूज चाहिए उस मेमोरी को ट्रिगर करने के लिए वो और स्ट्रेंथन हो जाते हैं. सो दिस इज हाउ आवर ब्रेन फंक्शंस. Let's understand this with a small example. Agar you have the concept of learning, let's say water cycle. अब water cycle में कुछ words होते हैं जो मुश्किल होते हैं to remember, जैसे कि evaporation and precipitation. तो इस चीज को रट्टा मारने से या सिर्फ मेमोराइज करने से नहीं होता. Understanding how water moves from the ground to the sky and then gets back, it will help you remember the information and process it better. Reviewing it regularly and connecting it to what you already know, जैसे कि weather patterns को observe करना, उसको समझने शुरू हो जाओगे, तो it will make it easier for you to recall whenever the information is needed. Okay, now we will talk about science. Yes, water cycle was science, but not that science, guys. The brain processes information in two ways. One, active learning. Second, passive learning. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड एक्टिव लर्निंग क्या होती है और पैसिव लर्निंग क्या होती है. पैसिव लर्निंग से शुरू करते हैं. पैसिव लर्निंग होती है जब आप सिर्फ रीड करते हैं टेक्स्ट को और उसको हाईलाइट कर देते हैं. लेट्स बी ऑनेस्ट, अगर मैं इसको सोशल मीडिया या आज के टाइम से रिलेट करके चलूं, इट्स लाइक आप इंस्टाग्राम को स्क्रॉल कर रहे हैं एंड आप होप कर रहे हैं कि आपने जितनी भी मीम्स या रील्स देखी हैं आपको सब याद रहे. एक्टिव लर्निंग क्या होती है? एक्टिव लर्निंग होती है जब आप उस इंफॉर्मेशन के साथ एंगेज करते हैं. जैसे कि कोई जो आपने कॉन्सेप्ट याद किया है, आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको समराइज कर रहे हैं, ये आप किसी और को वो कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं. एक साइकोलॉजिकल टर्म होता है जनरेशन इफेक्ट. जनरेशन इफेक्ट क्या होता है? द मोर यू जनरेट इंफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने एक कॉन्सेप्ट याद किया और मैंने वो 2 जनों को और पढ़ा दिया, द बेटर योर ब्रेन रिमेम्बर्स इट. इसलिए ये ट्राई करके देखो. आपने कोई कॉन्सेप्ट लर्न किया है, आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको समराइज करो एक सेंटेंस में. आंखें बंद करो एंड जस्ट अंडरस्टैंड और जस्ट ट्राई टू पुट इट इन वन सेंटेंस. अगर आप वन सेंटेंस में इस कॉन्सेप्ट को समराइज नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपकी अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है. इस कॉन्सेप्ट पर अभी और काम करने की जरूरत है. Yes. Then, why rote learning, as in ratification, fails without context? Let's understand that. To make learning stick and ace your exam, it's important to go, just beyond memorization. Here's how you can understand and apply this. First, memorizing without understanding will be equal to forgetting fast. अगर चीजों को सिर्फ रटोगे बिना समझे, तो वो it will lead to you forgetting it when you actually need the information. If you're just memorizing things, it's easy to forget them quickly. You might memorize a math formula, but अगर पता ही नहीं होगा कि उसको कहाँ apply करना है, कैसे apply करना है, then it's likely to, slip from your memory whenever it's needed. ओके, एग्जाम्स क्या होते हैं? बहुत लोग बोलेंगे, बहुत बच्चे बोलेंगे एग्जाम्स क्या है? जो भी हमने पढ़ा है, हमने याद किया है, जाके वॉमिट कर देना. लेकिन नहीं, एग्जाम्स होते हैं आपका हाउ और व्हाई टेस्ट करने के लिए. एग्जाम्स आर नॉट फॉर रिकॉलिंग फैक्ट्स. इट्स जस्ट नॉट अबाउट कि आप कितने ज्यादा फैक्ट्स जो आपने याद किया उनको उस टाइम पर या उन 3 घंटे में रिकॉल कर पाते हैं. इट्स अबाउट हाउ यू अप्लाई व्हाट यू हैव लर्नड इन रियल लाइफ सिचुएशन. आपने जल्दी देखा होगा, सपोज कोई चैप्टर है, एरिया पेरीमीटर का चैप्टर है, उसमें आपसे पूछे गए, आपको एरिया की फॉर्मूले आपने याद करे हैं, पेरीमीटर के फॉर्मूले याद करे हैं. बट एग्जाम में कभी भी सिर्फ ये नहीं पूछा जाएगा, ओके व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ अ सर्कल और एरिया ऑफ अ ट्राइंगल. आपको हमेशा उन्हें क्वेश्चंस में या रियल लाइफ एप्लीकेशन में कन्वर्ट करके दिया जाता है. सो एग्जाम का पर्पस है ये चेक करना कि आपने वो इंफॉर्मेशन कितने बेहतर तरीके से गेन करी है. Okay, and then make it fun with stories or mind maps. Instead of just cramming, try making learning fun. Stories use करो, real life examples use करो, mind maps बनाओ और उन dots को connect करो. Make the information meaningful. Example से समझते हैं. Visualize how plants absorb the sunlight and turn it into food instead of just memorizing the steps of photosynthesis. इस चीज को याद करने से, समझने से, विजुअलाइज करने से ज्यादा बेटर लर्न होगा. क्रिएट अ माइंड मैप टू कनेक्ट द की आइडियाज, मेकिंग देम इजियर टू रिमेंबर. And then when you understand, apply and make learning enjoyable, the information sticks and you will perform better in exams.
Okay, time for a small activity. Time to put your phones in your hands again. कुछ नहीं, आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब देना। अगेन हम आपकी प्रेफरेंस जानना चाहते हैं। अभी हमने बात करी है रोट लर्निंग के बारे में और एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग के बारे में। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आप में से कितने लोग रोट लर्निंग में बिलीव करते हैं, तो प्लीज चैट बॉक्स में आर टाइप कीजिए। और आप में से कितने लोग एप्लीकेशन बेस्ड लर्निंग में बिलीव करते हैं, सो प्लीज चैट बॉक्स में ए टाइप कीजिए। Okay, application-based learning, application-based. Oh my God, all our audience prefers application-based learning. That's so good to know. Not a single hour, oh my God. Okay, that's an eye opener. Very good. So I think we have a very, very awakened and enlightened audience. So good. All of you shared your responses here. Okay, so now the best part of our webinar, how to ace your exams. We learn about some practical strategies. So prioritize topics based on syllabus weightage. जिस टॉपिक की जिस सिलेबस में से जो भी टॉपिक ज्यादा वेटेज का है, टेक दैट फर्स्ट। उसको करोगे तो यू नो इंश्योर मैक्सिमम मार्क्स बाय डूइंग दैट। अगर एल्जेब्रा है, ओके आई एक्सप्लेन दिस विद अ यू नो पर्सनल एग्जांपल, माय ओन एग्जांपल। सो मैथ्स के पेपर में आई यूज्ड टू ऑलवेज फील वेरी मच स्ट्रेस्ड इन एवरीथिंग, एंड मेरे को प्रोबेबिलिटी बहुत इजी लगता था, in contrast to algebra, क्योंकि equations होती थी उसमें। So I used to properly master the probability, but I used to run from algebra. तो इस चीज को don't do this, okay? I've been through this. Don't do this. If algebra carries more marks than probability, then start with algebra. You'll take the probability after. It's okay. You'll excel it. Okay, the next practical strategies. It's important to start with familiar topics first to build confidence. जब एग्जाम पेपर आपके हाथ में आता है, प्लीज गो थ्रू द एंटायर पेपर एंड देन मार्क आउट द क्वेश्चन जो आपको लगता है आपको बहुत अच्छे से आते हैं। पूरे पेपर में सब कुछ आता हो ऐसा बहुत कम होता है। देयर आर सर्टेन एरिया जो हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं, इसलिए हमारा दिस इज वन ऑफ द प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी वांट टू शेयर विद यू। स्टार्ट विद द टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा एंड आप बाकी पेपर को करने में ज्यादा कंफर्टेबल हो जाएंगे। Then attempt questions with higher marks first. Answer the high mark questions first to secure those points. अगर एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का है, उसको पहले सॉल्व करो। 2 मार्क्स वाले जो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए हमारा 2 मार्क्स का होता है, डोंट सॉल्व दैट फर्स्ट, और मे बी योर चॉइस, बट द बेटर थिंग इज to solve the 10 markers first and then move on to the 2 markers. क्योंकि बाय चांस अगर टाइम मैनेजमेंट फेल हो जाता है और आपका कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर कंप्लीट नहीं हो पाता है, तो जो एरिया जो पोर्शन पेपर में छूटेगा वो 2 मार्कर होगा, ना कि 10 मार्कर। Okay, another strategy is divide long answers into bullet points or flow charts. क्योंकि जब आप long answers को clear points में break करते हो, तो एक तो वो लिखना आसान हो जाता है, उसकी presentation better हो जाती है, and the teacher who's checking your paper, उसके लिए भी आपका thought process देखना easy हो जाता है, marks देने आसान हो जाते हैं। Then time management during the exam. बहुत बच्चे आते हैं, बोलते हैं मेरा पेपर छूट गया। So to avoid that, set time limits for each section to avoid spending too much time on one section, one question. जैसे कि एक सेक्शन, जैसे अगर आप इंग्लिश का पेपर हम सॉल्व करें अगर, तो इंग्लिश के पेपर में सेक्शन ए होता है कॉम्प्रिहेंशन का, एंड सेक्शन डी इज क्रिएटिव राइटिंग यूजुअली। तो क्रिएटिव राइटिंग में क्या होता है, यू हैव टू थिंक ऑन द स्पॉट एंड राइट, और वो बहुत ज्यादा लिखना होता है। तो एलोकेट द टाइम, बिल्कुल ऐसे कि कॉम्प्रिहेंशन को भी टाइम मिले और उसको सेक्शन बी को भी उतना ही टाइम मिले। कि बहुत बच्चे आके ये प्रॉब्लम बताते हैं कि अनसीन पैसेज जब पढ़ना शुरू करा तो कब 1.5 घंटा निकल गया, 3 घंटे में से पता ही नहीं चलता। इसलिए जो क्वेश्चन पेपर के बाकी सेक्शंस है उसमें से बहुत रश अप करना पड़ता है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू एलोकेट टाइम बिटवीन ऑल द सेक्शंस। Then another important strategy is to analyze past exam patterns for frequently asked questions. जब आप पिछले एग्जाम पेपर्स उठा के देखते हैं और आपको लगता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स या कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं
जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, पूछे जा रहे हैं, इसका मतलब वो वाला जो पर्टिकुलर टॉपिक है दैट इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ये सजेशन है हमारी कि एग्जाम पैटर्न्स को जरूर एनालाइज कीजिए और जो क्वेश्चंस बहुत रिपीट हो रहे हैं उनको मास्टर करना जरूरी है। Then practice writing full length mock test under time conditions. हमारी ट्यूशंस में, हमारे ट्यूशन सेंटर्स में ये बहुत ज्यादा होता है. What they do is they simulate the exam environment to improve your speed and accuracy. एक जो 3 घंटे का एग्जाम है, टेक दैट एंड यू स्टार्ट राइटिंग इट. तो उससे आपको पता लगता है कि मेरे को एग्जाम टाइम पे कैसे करना है. एंड ट्राई टू फॉलो द पैटर्न एज इन, अगर हमारा एग्जाम टाइम इज फ्रॉम 10:30 to 1:30, तो अपने ब्रेन को ट्रेन करने के लिए अपने प्रैक्टिस टेस्ट भी 10:30 to 1:30 लो. उससे क्या होगा, आपके ब्रेन को वो ब्रेन लर्न करता रहेगा कि इस पॉइंट पे मुझे सबसे ज्यादा एक्टिव रहना है. सो इट गेट्स यूज्ड टू इट. Okay, then another strategy, important strategy is revise through active recall. Test yourself on what you have learned instead of just rereading. तो सिर्फ टॉपिक को रीरीड करने के बजाय बेटर होगा कि जब आप लर्न भी कर रहे हैं, आप बंद कीजिए अपनी बुक को एंड देन ट्राई टू रियलाइज या उसको रिकॉल करके देखो कि मैंने क्या पढ़ा है. और अगर आप अपने आप को वो रिकॉल कर पा रहे हैं, अपने आप को वापस बता पा रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा है, दैट मीन्स you are on the right track. Then annotate textbooks with summary notes. अपने जो पैराग्राफ्स इतने बड़े बड़े होते हैं, बहुत सारे पैराग्राफ, हिस्ट्री बुक्स में कितने बड़े बड़े पैराग्राफ्स होते हैं, सो उसको जब रिवाइज करने जा रहे हो तो हाईलाइट दी की कंसेप्ट्स एंड समराइज देम, ताकि जब रिवीजन कर रहे हो तो उसमें प्रॉब्लम ना हो. अगर कोई इंपॉर्टेंट डेट है तो हाईलाइट कर दो, और अगर बहुत लंबा पैराग्राफ है तो उसके साइड में छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स बनाओ, ताकि जब रिवाइज करने जाओगे तो पूरा पैराग्राफ ना पढ़ना पड़े. Then another important technique which is very successful is to use flashcards. अगर आपको डेट्स याद रखने हैं, आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, आपको डेफिनेशंस याद रखनी है, या आपको से हिस्ट्री में सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स याद रखने हैं, इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, उसके लिए शुरू कैसे हुआ, क्या सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे, पुट ऑल दो सीक्वेंस इन अ फ्लैश कार्ड. जब आप फ्लैश कार्ड पे इंफॉर्मेशन रखते हो, उससे आपकी ब्रेन को चंकिंग मिल जाती है. सो वो इंफॉर्मेशन रिटेन करना बेटर हो जाता है और उसका एक्टिव रिकॉल एट द टाइम ऑफ एग्जाम ऑल्सो इज बेटर. Okay, so here comes the $1,000,000 question. How do we actually study smart? इस generation में वैसे भी working hard is not, I know it's not that what we say applicable. We work smart. So understanding this, first comes the 80/20 rule. What happens is 80% of your results comes from the 20% of your efforts. Instead of just reading everything, focus on the topics जो ज्यादा important हैं, जो ज्यादा frequently तुम्हारे एग्जाम्स में आ रहे हैं. जैसे कि अगर मैथ्स चैप्टर है, आई डोंट नो, मैं मैथ्स के एग्जांपल्स बहुत ज्यादा लेती हूँ, बहुत बहुत सीखा है मैंने गाइस. इफ अ मैथ चैप्टर हैज 10 formulas but only 3 are always coming, तो master those 3 first. उन बाकी 7 formulas को भी करो, बट उन 3 formulas को ज्यादा अच्छे से करके जाओ. Okay, then we talk about a scientific technique which is called as Pomodoro technique. अभी Pomodoro technique एक scientific technique है. ये क्या कहती है? This says that you study for 25 minutes and then take a 5-minute break. उल्टा नहीं, 25 minutes study, 5-minute break. क्यों? क्योंकि जैसे आपकी बॉडी थकती है, ऐसे आपका ब्रेन भी टायर्ड फील करता है. एंड दिस इज ऑल बेस्ड ऑन कॉग्निटिव लोड थ्योरी, जो हमारी साइकोलॉजी की थ्योरी है. ये कहती है कि आपका ब्रेन सिर्फ कुछ अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन ही प्रोसेस कर सकता है बिफोर इट जोन्स आउट. सो इसीलिए इट्स बेटर कि आप कुछ समय के लिए ब्रेन को उसका खाना दें या लर्न करने का सामान दें, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक दे दें. Then spaced repetition, इसके बारे में हमने पहले भी बात करी थी. So what happens is revising once is not enough. एक रात पहले रिवाइज करने बैठते हैं और कुछ घंटे पहले एग्जाम से रिवाइज करने बैठते हैं, that will not help. You need to space out your revision. Like quick tip, review new topics one day, 1 week, and then 1 month later. It will stick better. Then another scientific technique, it is called as the Feynman technique. अब फेनमैन टेक्निक क्या कहती है? आप टेस्ट करना चाहते हो कि आपने जो लर्न किया है आपको वो समझ आया कि नहीं आया.
उसे एक 10 साल के बच्चे को समझा दो, यानी कि उस कॉन्सेप्ट को इतना सिंप्लीफाई कर दो कि वो एक 10 साल के बच्चे को भी समझ आ सके। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को सिंप्लीफाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब अभी आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इनकम्प्लीट है और उस पर और काम करने की जरूरत है। Then mind maps and flashcards. Use mind maps for connections and flashcards for quick recall. Fun fact, flashcards activate your retrieval practice, which is like a workout for your brain. ओके, सो वी हैव अनदर पोल। इससे पहले कि हम मेमोरी टेक्निक्स की बात करें, हम आप सबसे जानना चाहते हैं कि आप इंफॉर्मेशन को कैसे मेमोराइज करते हैं। Okay, so the question, as you can see, is how do you memorize information? Option A, repeating it 100 times. Option B, making acronyms and mnemonics, teaching it to someone. Option C. And option D is mind maps and diagrams. Okay, so we request everyone to cast in their vote once again, and we are so happy to see कि हमारी बहुत एक्टिव ऑडियंस है जो सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये शो करता है कि आप यहाँ पे एक वैलिड रीजन से हैं। ओके, सो वी रिक्वेस्ट एवरीवन टू वोट। हाउ डू यू मेमोराइज इंफॉर्मेशन? आपको अपने बारे में बात करनी है, और अगर आप एक पेरेंट है, एक एजुकेटर है, तो आपको अपने बच्चों के बिहाफ पे पोल देना है। किसी भी इंफॉर्मेशन को बार बार रिपीट करके, एक्रोनिम्स या निमोनिक्स बना के, किसी और को पढ़ा के, या माइंड मैप और डायग्राम्स बना के। विल वेट फॉर फ्यू मोर सेकेंड्स। Okay, so I think it's time to end the poll, and let me share the results with you. Okay, so we have the results here. So as we see that most of our audience, 44% of our audience, they use mind maps and diagrams to retain the information. There's someone who is repeating it 100 times. Okay, yeah. So, to improve your learning and memory retention, it's important to use effective strategies that engage both your brain and your body. Here are some techniques that can help. First, chunking. Break information into small, manageable pieces. बहुत ही नॉर्मल और बहुत ही रूटीन में देखा गया एग्जाम्पल ये है, जब भी आप खाना खाते हो, यू डोंट ईट द फूड पूरा रोटी एक ही बार में, राइट? आप उसको छोटे छोटे पीसेस में खाते हो ताकि आपके स्टमक के लिए ईजी हो जाए उसको डाइजेस्ट करने। वैसे ही हमारा ब्रेन भी है। ब्रेकिंग डाउन लार्जर अमाउंट्स ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू स्मॉलर डाइजेस्टेबल चंक्स मेक्स इट इजियर टू रिमेंबर। फोन नंबर भी जब याद करते हो तो पूरे 10 डिजिट्स याद करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट, तो उसको 2 के पेयर्स में डिवाइड करो। Another important memory boosting technique is visualization, जहां पे हम मेंटल इमेजेस यूज करते हैं कॉन्सेप्ट्स को लिंक करने के। इसका छोटा सा एग्जांपल है निमोनिक्स। मेरे ख्याल से हम सबने जब रेनबो के कलर्स याद कर रहे थे इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस, हम सबने एक शब्द याद किया था विबग्योर, वॉयलेंट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। इससे हमारे पूरे रेनबो के कलर्स एक वर्ड में याद हो गए थे। ऐसे ही शायद छोटे होते जब हमने प्लैनेट्स को याद किया था एक सीक्वेंस में, तो हमने वो एक एक्रोनिम यूज किया था, माय वेरी एंटरप्राइजिंग मदर जस्ट मेड अस नूडल्स, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो जब भी हमारे पास किसी भी हेडिंग की बहुत सारी सब हेडिंग्स है या क्लासिफिकेशन है, सारी इंफॉर्मेशन रिटेन करना पूरे डिटेल्स में मुश्किल हो जाता है, तो उसके बहुत ही इफिशिएंट स्ट्रैटेजी है उसको ब्रेक डाउन करना। यानी कि आप हर एक सब हेडिंग का फर्स्ट अल्फाबेट निकाल दीजिए, उसको मिला के आप एक वर्ड बना दीजिए। सो वो पूरा जो आपका टेक्स्ट है, पूरा जो टॉपिक है, वो एक वर्ड में आके सिमट जाएगा, जिससे आपका ऑब्वियसली रिटेंशन बेटर होगा, और जब समय आएगा तो आप सारी इंफॉर्मेशन या सारी सब हेडिंग्स इजीली रिकॉल कर सकते हो। Then association techniques. Link new information with familiar things. Linking new information to something you already know, it makes it easier to remember. जैसे कि अगर फॉरेन लैंग्वेज लर्न कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो स्पेनिश में एक वर्ड है लिब्रो, जो कि इंग्लिश वर्ड लाइब्रेरी से एसोसिएट कर सकते हो। लिब्रो मीन्स बुक, एंड लाइब्रेरी से उसको एसोसिएट करोगे तो ज्यादा अच्छे से लर्न कर पाओगे। So another technique is
स्टोरी टेलिंग, जिसकी हमने पहले भी जिक्र किया था। इट इज लाइक आप कॉम्प्लेक्स आइडियाज के अराउंड एक नरेटिव बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल हिस्ट्री का चैप्टर अगर हम बात कर रहे हैं, लाइक मैंने अभी पीछे बात करी थी कि आप इंडियन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, अब ऐसे सब कॉन्सेप्ट्स को अगर हम टॉपिक वाइज याद करेंगे तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है रिटेन करने के लिए। व्हाट इफ हम उसको स्टोरी में कन्वर्ट करते हैं, व्हाट इफ उसका विजुअल इनपुट देते हैं। अब तो हमारे पास बहुत सारी मूवीज भी हैं जहाँ पे क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कॉन्सेप्ट की करी जाती है। सो जब भी आप किसी कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में प्रेजेंट करते हो तो आपकी ब्रेन उसको बेटर रिटेन करती है, एंड अगेन रिकॉल आल्सो बिकम्स ईजियर। Then review regularly. Spread out your study time to remember more. Spacing out your study sessions over time helps reinforce memory and improves long-term retention. Instead of sitting and cramming everything before the night, review material over several days, revisiting after 1 day, then 3 days, then ultimately 1 week. It will help you in retaining the information better. Then another very important yet very undermined technique is mindfulness exercises. Now mindfulness या meditation को अगर आप practice करते हैं, वो आपको आपकी distractions को reduce करने में help करता है, आपके focus को बढ़ाता है, concentration को बढ़ाता है। छोटा सा एग्जाम्पल हम ट्राई कर सकते हैं। आप जब पढ़ने बैठने लगे हैं, आपको पता है कि आपने अगला 1 घंटा पढ़ना है, उससे पहले आप सिर्फ 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो एंड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग। जस्ट ब्रीथ डीपली, इनहेल डीपली एंड एक्सहेल आउट। इससे क्या होगा कि आपके दिमाग से जो क्लटर ऑफ थॉट्स है वो दूर हो जाएगा, आपका फोकस बेटर हो जाएगा, और अगले 1 घंटे में आप जो भी पढ़ेंगे उसका ग्रास्पिंग मच बेटर हो जाएगा। Then last, diet and sleep. Foods rich in omega-3 and a consistent sleep schedule is very important. Eating brain boosting foods and maintaining a consistent sleep schedule enhances memory and focus. So food which are rich in omega-3, तो जैसे walnuts, flax seeds, ऐसी चीजों को अपनी डाइट में ऐड करो and aim for at least 7 to 9 hours of sleep. Children don't sleep 4-3 घंटे की नींद पे they go for the exam, which is not at all healthy for your brain and your body. So this will obviously hamper the performance. These techniques now will help you improve memory retention, focus, and overall brain health, leading to a better learning and academic success. Okay, now let's talk about a very important thing. प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट करना है, मोटिवेटेड कैसे रहना है। ओके, हैंड्स अप अगर आपने कहा हो मैं बस एक एपिसोड के बाद में पढ़ना शुरू करूंगा। ओके, बस एक रील और बस ये खत्म हो जाए, उसके बाद मैं पढ़ना शुरू करूंगा। Yes, and हमारे साथ भी हुआ है। सो आज हम सीखते हैं कि हम प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे बीट कर सकते हैं। So find out your why. क्यों कर रहे हो ये सब? Psychologists say motivation is higher when you have a purpose. उस चीज से पीछे कुछ एसोसिएट करोगे, पर्पस लगाओगे, तो you will feel motivated towards it. So ask yourself, क्यों चाहिए गुड ग्रेड्स? ड्रीम कॉलेज, पेरेंट्स को प्राउड फील करवाने के लिए, एंड अ रिवॉर्ड, तो फोकस ऑन दैट। सेकेंड इज हैबिट स्टैकिंग। जब भी आप पढ़ाई को किसी हैबिट के साथ लिंक करके चलते हो तो उसकी कंप्लायंस बेटर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दिन के 3 मील्स तो फिक्स्ड है ना, तो मैं ये सोच के चलती हूँ ओके मैं ब्रेकफास्ट के बाद पढ़ना शुरू करूंगी। सो जब मैं अपनी स्टडी को अपनी हैबिट के साथ लिंक करके चलती हूँ तो ऑब्वियसली मेरी कंप्लायंस बेटर, मुझे पता है मैं जैसे ही नाश्ता खत्म करूंगी आई हैव टू गेट टू स्टडी शेड्यूल, एंड देयर शुड बी नो एक्सक्यूजेस व्हेन यू ट्राई टू लिंक योर स्टडी टाइम विद योर हैबिट्स। Then comes the 2-minute rule. If a task feels very overwhelming, बहुत मुश्किल है अपने आप को एक जगह पे बैठा के पढ़वाना और सब, तो start with just 2 minutes. I know बहुत लोग बोलेंगे 2 मिनट में क्या ही होगा, but guys, the hardest part is actually starting the task. Once you do, you will keep going. Okay, next another strategy जो मैंने यूज करी है, that is
having somebody who you can call as accountability partner or study buddy. जब आप किसी के साथ पढ़ना शुरू करते हो तो वो आप बहुत ज्यादा अकाउंटेबल हो जाते हो, तो इसलिए कोई ऐसा बडी ढूंढो जो आपके साथ आपके गोल्स को शेयर करता हो, जो आपकी प्रोग्रेस को ट्रैक करने में आपकी मदद करे। और जब आपको पता होता है कि कोई आपको देख रहा है तो टास्क पे रहना आसान हो जाता है। Then reward yourself after completing these study milestones. Celebrate the little wins, whether it's a small treat, a break, or watching a short episode. Guys, short episode, not a full season. Reward yourself after achieving study milestone boosts motivation and it keeps you going. Another important technique to break the procrastination loop is to start with these small tasks, no matter how small it is. So tackle the tiny part of your task. जैसे कि सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस लिखना या एक प्रॉब्लम एक्सरसाइज का बस एक सम सॉल्व करना, एंड सडनली आपको लगेगा ओ माय गॉड, ये जर्नी इतनी मुश्किल नहीं है जितना मुझे लग रहा था। बिकॉज रिमेंबर, अ जर्नी ऑफ 1000 miles begins with a small step. So taking that small step is very important to beat procrastination. Okay, so now let's say the exam is here. Now what? Leave space for additional points and revise before submitting. For multiple choice questions, eliminate the options. Look for keywords, mark the answer. For descriptive questions, write crisp, point-based answers. Teachers को भी बहुत help मिलेगी इससे. Moving on to our next slide. Okay, so now here we talk about coping अगर हमारे एग्जाम्स अच्छे नहीं गए। लेट्स बी रियल, एग्जाम्स स्ट्रेसफुल होते हैं, बट स्ट्रेस हमेशा बुरा नहीं होता। द राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेस, जिसको हम यू स्ट्रेस कहते हैं, ये एक्चुअली आपकी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है। द ट्रिक इज हाउ यू मैनेज योर स्ट्रेस। सो कुछ स्ट्रेस बस्टिंग टिप्स हैं। एक टेक्निक होती है जिसे हम 4-7-8 टेक्निक कहते हैं। उसमें आपने क्या करना है, यू ओनली हैव टू ब्रीथ फॉर 4 seconds, आई मीन इनहेल फॉर 4 seconds, होल्ड फॉर 7 seconds and exhale for 8 seconds. It is a very effective technique to beat stress. सेकेंड, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करो। इमेजिन कि आप एग्जाम दे रहे हैं और आप बहुत काम है, बहुत कॉन्फिडेंट है। दिस trains your brain and this really helps to beat the stress. Third, सोना, please don't forget to sleep. Okay, मैं आपको एक साइंटिफिक फैक्ट देती हूँ। आपकी ब्रेन इंफॉर्मेशन को सॉर्ट करती है जब आप सोते हैं, तो इसलिए एक्स्ट्रा क्रैमिंग के लिए प्लीज अपनी स्लीप को सैक्रिफाइस या कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। And what if you don't ace your exams? It's not the end. Parents, focus on this. Failure is just a feedback, an opportunity to learn. Remember, some of the most successful people, like Albert Einstein and Steve Jobs, failed before they succeeded. So, how to deal with it? First, dealing with disappointment. It's not the end of the world. Disappointment happens to everyone. Even we as, you as parents have faced failures. Don't let it define you. It's just one setback, not the end of your whole world, not the end of your journey. Then it's very important to have a growth mindset. So इसलिए आपने फोकस करना है कि आपने क्या सीखा है। So instead of dwelling on the failure, फोकस करो कि इस एक्सपीरियंस से आपने क्या सीखा है, because every mistake is the chance to grow and improve next time. Then strategies for a better attempt next time. Gear up, guys. Analyze your weak areas. Reflect on where you went wrong, and identifying your weak areas will help you target them in your next study session. Then comes seek guidance from teachers or mentors. Don't hesitate, guys. Teachers or mentors जो हैं वो आपके लिए ही होती हैं. They are there to offer their valuable insights to help you improve because they also want you to succeed. Use a new approach to studying. तो क्या हुआ अगर पिछली वाली study technique didn't work out? Try to change it and then see what works best for you. And please don't forget the importance of taking a break and recharging. मोबाइल को भी recharging की जरूरत पड़ती है, इसलिए take break,
रिचार्ज योर माइंड, इट इज एज इंपॉर्टेंट एज स्टडिंग हार्ड। और प्लीज याद रखिए कि सक्सेस कभी लीनियर नहीं होती है, सक्सेस कभी स्ट्रेट पाथ नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। हमारा काम क्या है? सिर्फ फॉरवर्ड पुश करना, और एक दिन हम वहां जरूर पहुंचेंगे। Then let's talk about the, you know, it's actually daunting, managing exam stress and anxiety. First, you recognize the signs of exam stress. Pay attention to what your body and mind are telling you. Don't ignore those signs. Stress जो है वो बहुत ही different ways में आता है. Nervousness, सोने में दिक्कत हो रही है, feeling overwhelmed, anything can, define, and you can label them as stress. Recognizing these signs early helps you manage them better. Again, please do not forget the importance of breathing. Deep breathing exercises before you sit for study or for the exams are very, very important strategy to manage the exam stress. Then stretch breaks during long study sessions. Sitting for long periods can make you feel very stiff and very tired. लगता है कि यार अब कुछ जा ही नहीं रहा दिमाग में. Take that as a cue. Get up and go for a walk, go for a jog, deep breathe, anything. Take short stretch breaks, short again, stretch breaks to refresh your body and mind and keep your energy up. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम आप बात तो करते हो मेडिटेशन की, माइंडफुलनेस की, हमें तो पता ही नहीं कैसे किया जाता है। सो ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे गाइडेड सेशंस अवेलेबल हैं, सो आप कोई भी छोटा सा गाइडेड सेशन ले सकते हो टू गेट इनटू द प्रैक्टिस ऑफ मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस। Then positive visualization. Picture yourself doing well. Imagine karo कि you have succeeded in your exams. You are standing on the stage receiving that award. Visualizing success can build confidence and reduce stress just before the big day. देन टॉकिंग टू समवन, आपको बहुत ज्यादा फियर हो रहा है, एंजाइटी हो रहा है, तो प्लीज उसके बारे में बात करो किसी भी ट्रस्टेड पर्सन से, आपका फ्रेंड हो, फैमिली मेंबर हो, मेंटोर हो, काउंसलर हो, बिकॉज जब आप अपनी एंजाइटी और फियर की बात करेंगे तो आपको खुद को बहुत सपोर्टेड फील होगा और आपका इमोशनल लोड कम हो जाएगा। I totally agree that. Get professional help if the anxiety persists. अगर वो anxiety consistent रह रही है, then you need professional help. If anxiety becomes overwhelming and doesn't go away, don't hesitate, people, to seek help from a professional who can guide you through managing exam stress effectively. Okay everyone, now we come to the end of the webinar. Just to see आपने हमारी बात पर कितना ध्यान दिया है, हम एक छोटा सा क्विज लेने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना, आप क्विज आपके स्क्रीन पे फ्लैश होगा, एंड ऑल यू हैव टू डू इज जस्ट गिव अ ट्रू और अ फॉल्स आंसर टू इट। Let me just see it. There is a bold result that is being shown. Stop sharing. Okay, and there we go. There's this quiz on your screen, and we'll quickly take you through the questions. आपने सिर्फ ट्रू और फॉल्स आंसर देना है। दिस विल शो अस कि आप कितना अटेंटिव थे। हम एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो हम एक छोटा सा एग्जाम अपने ऑडियंस का भी लेना चाहेंगे यहाँ पे, देखने के लिए कि आपने एक्टिव लर्निंग करी है या पैसिव लर्निंग करी है। ओके, सो वी वांट एवरीबडी टू प्लीज टेक द क्विज. Stay with us for next 5 minutes because we have very important information to share after the quiz is done. So we want all of you to please take the quiz. Okay, we're getting the answers here. Okay, that's good. We request everyone to please take the quiz. Okay, good. The questions are very relatable. पहला, cramming helps you retain information better. रट्टाफिकेशन से information ज्यादा अच्छी तरह हमारे दिमाग में रहती है. True, false. दूसरा, sleeping after studying improves memory retention. तो यानी कि सोने की importance. Third, studying for long hours without breaks is the best way to learn. Fourth, you should always stick to one study method. Then, rewriting notes helps you to memorize better.
Then listening to music while studying helps everyone. Okay, then hydration. कितना पानी पीते हैं आप? Hydration improves concentration and brain function. Then studying a night before bed. Oh, okay, studying right before bed is useless. And then watching educational videos is enough to learn a subject. Then self-testing is one of the most effective ways to study. Okay, so all you have to do is just give true or false to it. We'll quickly be ending the poll. So we have maybe 10 more seconds until you all complete the quiz. मीनवाइल हम अभी चैट बॉक्स में अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक शेयर करेंगे. अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप हमारे और वेबिनार्स का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो भी हमारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, अगर आप उनके बारे में अपडेटेड रहना चाहते हैं तो प्लीज हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी जिसका नाम है मीत फैमिली को जरूर ज्वाइन करें. उसका लिंक हम चैट बॉक्स में शेयर कर रहे हैं. ऑल्सो हमने कहा था कि हम इस वेबिनार में पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स देंगे. सो हम एक फीडबैक फॉर्म अभी शेयर करेंगे चैट बॉक्स में. आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज वो फीडबैक फॉर्म भरिए. उसमें आप अपनी मेल आईडी और नाम ध्यान से भरिए, बिकॉज हम अपने इस वेबिनार के रिसोर्सेज, हमने बहुत चेकलिस्ट वगैरह बनाई है, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट हैंडआउट्स हैं. हम सारे रिसोर्सेज और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट्स फीडबैक फॉर्म के बेसिस पर देंगे. सो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन करें और हमारे इसको भी प्लीज लॉग इन करें. आप फीडबैक फॉर्म जरूर फिल कीजिए. ओके, सो इट्स टाइम टू end the poll. Okay, around 71% of people 74. have, okay, 74 have already voted. We request everyone to take this quiz. Okay, we'll wait for 10 more seconds. We request you to complete it. Okay, we end the poll here. Okay, so if anyone has any questions, you can unmute yourself and you can give us the questions. Meanwhile, our details are flashing on your screen. Let's check the chat box. You have the links to our feedback form also there. You can always reach out to us if you have any concerns or you know of somebody who needs help in special education or in counseling. You can always reach out to us. Our details are flashed on your screen. And so no questions. So here's our final thought. Exams test your preparation, not your worth. Work smart, stay confident, and remember, you got this. All the best to all the students and also the parents. Happy studying, everyone. Thank you. Thank you everyone for joining us today. We'll be having another webinar soon, the details of which will be shared with you all. Thank you everyone. Take care. Good day.